السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے شندور پولو فیسٹیول کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی اپیل پر ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں احتجاجی ریلیاں۔ قرآن کریم سے محبت اور بے مثل عقیدت کا اظہار۔ قرآن ہمارے قلوب میں ہے، کبھی حرکت سے تمام عالم اسلام کے جذبات مجروح ہوئے۔ مقدس ہستیوں اور مقدس کتابوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کے لیے عالمی سطح پر قوانین بنانا ہوں گے، شرکاء کا مطالبہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ آزادی اظہار کی آڑ میں قابل احترام مذہبی شخصیات، مقدس کتابوں اور علامتوں کی توہین کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی دنیا کی اجتماعی آواز کے طور پر OIC کو جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ مسئلہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور دیگر فورمز پر اٹھانا چاہیے۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ لمز کے قیام کا مقصد غذائی تحفظ اور زرعی برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ لاکھوں ایکڑ بنجر اراضی کو قابل کاشت بنا کر درآمدی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ جدید ترین نظام زرعی پیداوار میں اضافے کا سبب بنے گا۔ نوجوان ملک کا مستقبل۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا آغاز۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے نوجوانوں کو بھی 5 ارب روپے کے زرعی قرضے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سماجی تحفظ اکاؤنٹ کا اجرا۔ معاشی چیلنجز کے باوجود پروگرام کو وسعت دے کر مستحق طبقے کی مشکلات کا مداوا کیا۔ 70 ارب روپے متاثرین میں انتہائی شفاف طریقے سے تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کا مقصد معاشرے کے کمزور افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اور کارآمد شہری بنانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ فساد اور انتشار کے منصوبہ سازوں نے لیپ ٹاپ پروگرام کو سیاسی رشوت کہہ کر علم دشمنی کی۔ اپنے مذموم مزاحم کے لیے نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم، بندوق، غلیل، پتھر اور ڈنڈے تھمائے۔ علم سے محبت کرنے والے نوجوانوں میں پھر سے 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ راہ حق کے شہیدوں کو قوم کا سلام۔ بے مثال جرأت کی تاریخ رقم کرنے والے حوالدار لالیک جان نشان حیدر کا یوم شہادت۔ اپنے خون سے وطن سے وفا کی ایسی داستان رقم کی جس کا دشمن نے بھی اعتراف کیا۔ غزر میں شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا شہید کو شاندار خراج عقیدت۔ 9 مئی کے دلخراش واقعات پر بیرون ملک مقیم پاکستانی سول کمیونٹی بھی سیخ پا۔ فرانس میں مقیم پاکستانی اور فرانسیسی عوام کا فرانسیسی صدر کے نام کھلا خط۔ پاکستان کے حالیہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے ذمہ دار چیئرمین PTI ہیں، جن کے گمراہ کن پروپیگنڈے نے ملکی اداروں کو کھوکھلا کیا۔ خط کا متن: جسٹس مسرت ہلالی نے سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حلف لیا۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء کی شرکت۔ جسٹس مسرت ہلالی سپریم کورٹ میں تعینات ہونے والی دوسری خاتون جج ہیں۔
भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को ना दबा सके। तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान वानी का यौम शहादत कल मनाया जाएगा। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल। कश्मीरी अवाम बुरहान वानी और दीगर शहादा के मिशन को हर कीमत पर पूरा करेंगे। हुर्रियत क़यादत। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का मारतंग जिला शांगला में तोदे में दबकर जाँ बहक होने वाले 8 बच्चों के अहल खाना के लिए फीकस 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। इंजीनियर अमीर मुकाम को मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके ताज़ियत करने की हिदायत। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की दहशतगर्दी। सिहूनी फोर्सेस की नाबलूस में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 2 जख्मी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के जनीन में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल जाहिरियत की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों के नतीजे में 12 फलस्तीनी शहीद और 120 जख्मी हुए। अगले 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, ओकाड़ा, कोहाट, पिशावर, बन्नू, करक और डीआई खान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कश्मीर, डेरा गाजी खान, कोलू, सिब्बी, बारखान, जोब, लॉरलाई, कला सैफुल्ला और मूसा खेल के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। दौरा श्रीलंका की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कराची में मुकम्मल। कौमी स्क्वाड कल श्रीलंका रवाना होगा। 11 और 22 जुलाई को वार्म अप मैच होंगे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई से गॉल और दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। और चित्राल की खूबसूरत वादी शंदूर में पोलो फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शंदूर आमद। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती मुसीकी पर मुश्तमिल महफिल मुसीकी का इनेकाद भी होगा। इख्तितामी तकरीब 9 जुलाई को होगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान।
नाज़रीन, मुल्क भर में आज यौम तक़दीस कुरान मनाया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के बाद इस अजीम इल्हामी किताब से मुसलमानों की वालिहाना अकीदत, मोहब्बत के इजहार और वाक़े पर शदीद एहतजाज के लिए ये दिन मनाने का फैसला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में एक इजलास में किया गया। उलमा इकराम ने जुमे के खुतबात में कहा कि कुरान करीम की इज़्ज़त और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। गुमराह ज़हन इस्लामोफोबिया का मनफी रुझान फैलाने के मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। नमाज जुमा के बाद मुल्क के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया और रैलियां निकाली गईं। लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत करके कुरान करीम से अपनी बेमिसल मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। एहतजाजी रैलियों में शरीक अफराद का कहना था कि स्वीडन में होने वाला वाक़या हमारे क़ुलूब पर हमला है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया को आज़ादी इजहार राय के ज़वाबित तय करना होंगे। मुक़द्दस हस्तियों और मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती करने वालों के लिए सख्त क़वानीन बनाना होंगे ताकि आइंदा ऐसे अंदोनाक वाक़यात रुनुमा ना हों। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामोफोबिया और मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती पर इस्लामी दुनिया के नुक्ता नज़र के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए OIC को इस्लामी दुनिया की इज्तिमाई आवाज़ के तौर पर एक मरबूत और जामे हिकमत अमली तैयार करना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम ताहा से टेलीफोन पर होने वाली बातचीत में वज़ीर आज़म ने कुरान पाक की बेहुरमती के बार बार पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र करते हुए इन इश्तियाल अंगेज और जानबूझ कर की जाने वाली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन वाक़यात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी इजहार और एहतजाज की आड़ में काबिल एहतराम मजहबी शख्सियात, मुक़द्दस किताबों और अलामतों की तौहीन को माफ़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के रुझानात और वाक़यात के बारे में मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात को बयान करने में OIC के सेक्रेटरी जनरल के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर जनीवा में कायम इंसानी हकूक़ की काउंसिल में फौरी बहस के निकात का खैर मकदम किया और कहा कि OIC को ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के अंदर दीगर मुतल्लिका फोरम्स और इदारों के साथ उठाना चाहिए। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामोफोबिया की लानत से निमटने के लिए OIC के पुख्ता आज़म का इयादा किया। सेक्रेटरी जनरल ने बिलअमूम और इस मामले पर बिलखुसूस OIC के मुज़ाकरात में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े पर आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इस्लाम अमन का दीन है और कुरान करीम दूसरे मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत, अफसोसनाक वाक़े पर आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्सा। अमन, मोहब्बत और इंसानी फलाह के आफाकी पैगाम की बेहुरमती के मकरूह फेल पर हर मुसलमान का दिल गमज़दा। कुरान करीम फुरकान हमीद, हिदायत और रहनुमाई का मंबा, झूठ और सच में फ़र्क वाज़ेह करने वाली आसमानी किताब कुरान पाक में इल्म भी है, इबरत भी और नसीहत भी। कुरान हकीम में ज़िंदगी बसर करने का करीना और सलीका बताया गया। कुरान पाक में गौर और फिक्र और तदब्बुर की तरफ तवज्जो दिलाई गई। कुरान मजीद का एक एक हर्फ राह अमल और रुश्दो हिदायत का जरिया। ए बदबख्त, इस अजीम किताब की बेहुरमती करके तूने अपनी दुनिया और आखिरत तबाह की, लेकिन इस कभी हरकत से अल्लाह ताला के पैगाम को कभी नहीं मिटाया जा सकता। आज दुनिया भर के मुसलमान इस मुजरिमाना फेल पर दिल गिरफ्तार हैं। कुरान मुबीन तमाम मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। हम तेरा फेल तुझ तक नहीं लौटा सकते, क्योंकि हमें कुरान पाक दूसरे मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। स्वीडन में इस वहशियाना अमल से आलमी सतह पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान बाहमी एहतराम के रिश्ते और अमनो बर्दाश्त को फ़रोग़ देने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा। ऐसे वाक़यात मजहबी उसूलों और बाहमी इत्तेहाद के आलमी मुआहिदों के भी मुनाफी हैं। हम आज एक बार फिर दुनिया को कुरान पाक का यही पैगाम सुनाते हैं, इस्लाम का एहतराम करो, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करो।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनमें से 18.3% को खुराक के शदीद बहरान का सामना है। मौजूदा ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, ज़राई मसनूआत के बढ़ते हुए दरामदी बिल, आबादी में इजाफे और मुस्तक़बिल की खुराक की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कौमी, सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी क़यादत ने इस अहम मसले से निपटने के लिए फ़ैसलाकुन और बामायने इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया है। लिम्स का क़याम पहला गैर मामूली इक़दाम है जिसका मकसद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई बरामदात में इजाफा करना है। लिम्स के जरिए मुल्क के अंदर लाखों एकड़ बंजर ज़मीन को काबिल काश बनाना और कम पैदावार वाली अराज़ी की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है, जिसके जरिए कौमी ख़जाने पर दरामदी बोझ को कम किया जाएगा। ये जदीद तरीन निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी और पायदार ज़राई तरीकों से जरिए पैदावार में इजाफे का बाइस बनेगा। ये निज़ाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और देही लोगों की फलाह बहबूद को भी यकीनी बनाएगा। GIS की बुनियाद पर लिम्स ज़राअत का डिजिटाइजेशन, मकामी काश्तकारों को ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, फसलों से मुतालिक मालूमात, मौसम, पानी की दस्तियाबी और कीड़ों की निगरानी से मुतालिक हकीकी वक्त में न सिर्फ मालूमात फराहम करेगा बल्कि ये मौसर मार्केटिंग के निज़ाम के जरिए मिडल मैन के किरदार को भी कम करने में मुआविन साबित होगा। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के मुश्तरका इश्तराक से कायम किया गया है। ये मंसूबा मुल्क की तारीख में ज़राई शोबे में न सिर्फ इनकलाबी कदम साबित होगा बल्कि ये फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में भी मददगार होगा। लिम्स के क़याम से किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सेटेलाइट से हमा वक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के बारे में मालूमात और मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी हासिल होगी। इस सिस्टम के तहत गैर आबाद और कम पैदावार वाली ज़राई ज़मीनों पर मॉड्यूलर, स्प्रिंकल इरीगेशन और दीगर जदीद ज़राए इस्तेमाल करके ज़राई पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस सिस्टम के तहत सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी जिससे मुल्क में मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के साथ बहुत से मंसूबों में शराकत दारी की जा रही है जिससे पाकिस्तान के बरामदात में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकार कंपनी सर्विसेज लॉन्ग मार्च टायर्स और चाइव योंग लॉन्ग मार्च टायर्स के वफ्द ने चेयरमैन ली शियोंग की क़यादत में इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने वफ्द की पाकिस्तान में टायरों की सनत में मारूफ पाकिस्तानी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए सरमायाकारी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में भाइयों की तरह मदद की। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी में हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में टायरों की सनत की बेहतरी के लिए हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को टायरों की स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि टायर और स्पेयर पार्ट्स की स्मगलिंग रोकने के लिए जामे पॉलिसी जल्द पेश की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी कंपनी की सरमायाकारी से कायम प्लांट से पाकिस्तान में तैयार शुदा टायर बैनुल-अक़वामी मंडियों में फ़रोख्त हो रहे हैं। कंपनी के पाकिस्तान में तैयार शुदा टायरों ने 1 बरस की कलील मुद्दत में बैनुल-अक़वामी मंडियों में अपनी जगह बना ली है। मजीद बताया गया कि कंपनी पाकिस्तान में टायरों की पैदावार को बढ़ाकर सालाना बरामदात को $200 मिलियन तक लेकर जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद माशरे के कमज़ोर तबके को अपने पाँव पर खड़ा करना और कारामद शहरी बनाना है। BISP के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत ने माशी चैलेंजेस के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इंतहाई शफ़ाफ अंदाज में वसअत देकर मुस्तहिक तबके की मुश्किलात का मदावा किया है। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होकर अपने वसाइल खुद पैदा करेगा। जिन मुश्किल हालात में हमने हुकूमत की बागडोर संभाली, सैलाब का सामना था, 3 करोड़ 30 लाख अफराद इससे मुतासर हुए। वफाकी हुकूमत ने एक कॉन्शियस फैसला किया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 70 अरब रुपए तकसीम किए शफाफ तरीके से चारों सूबों में। इस तरह सैलाब का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसको हमने
मीट किया। वजीर आजम ने कहा कि 1 साल की कलील मुद्दत में BISP का दायरा कार इंतहाई शफाफ अंदाज में मुल्क के तूलो अर्ज तक फैलाया गया, जिसके लिए चेयरपर्सन BISP और उनकी टीम तारीफ के लायक है। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी डोनर एजेंसियों और इदारों से भी प्रोग्राम में अपना ताउन बढ़ाने की अपील की। विफाकी वजीर तखफीफ गुर्बत और चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी ने कहा कि प्रोग्राम शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन का तसलसल है। मौजूदा हुकूमत ने प्रोग्राम का दायरा कार 90 लाख खवातीन तक बढ़ाकर इसके लिए मुख्तस करदा बजट 404 अरब रुपए से जायद कर दिया है। विफाकी सेक्रेटरी BISP आमिर अली अहमद ने कहा कि प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सहमाही रकम 7,000 से बढ़ाकर 8,750 रुपए कर दी गई है। प्रोग्राम के तहत 92,000 से जायद अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स और नशोनुमा प्रोग्राम का दायरा कार मुल्क के तमाम अजला तक फैलाकर 488 सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट का बाज़ाब्ता इजरा किया। वजीर आजम ने मुस्तहक खवातीन में समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट्स की किट्स भी तकसीम की। इस मौके पर विफाकी वजीर शाजिया मरी ने वजीर आजम को BISP की 15 साला कारकर्दगी पर मुरतब की गई किताब भी पेश की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल और खुशहाली की ज़मानत है। दिल चाहता है कि हर बच्चे के पास लैपटॉप हो और 1 लाख नहीं 1 करोड़ लैपटॉप तकसीम करूं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों में लैपटॉप तकसीम करने का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के साथ थीं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में मेरिट की बुनियाद पर तलबा और तालिबात में लाखों लैपटॉप तकसीम किए और वज़ाइफ दिए।
इस वक्त मुल्क में नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कोई चीज नहीं। पाकिस्तान को आपसे तवक्को है, आप हमारे दरख्शंदा मुस्तकबिल की जमानत हैं। जदीद दौर के तकाजे हैं कि हमें इंशाअल्लाह कौम के हर बच्चे को जिसके पास इल्म है और वो मेहनत करना चाहता है, हम अपना पेट काटें, कुछ करें, पूरे पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को लैपटॉप दें और पाकिस्तान को अजीम बनाएं। 1 लाख लैपटॉप और रखवाया आपके लिए, और इंशाअल्लाह वो सिर्फ मेरिट पे मिलेगा, कोई सिफारिश नहीं होगी। वजीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए कर्जे दे रहे हैं ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। नौजवान बच्चों के लिए जो देहातों में हैं उनको हम ज़रूरी कर्जे देंगे इंशाअल्लाह, और वो 5 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 5 अरब रुपए उनके लिए रखे हैं। आप मेहनत करेंगे, आप अजीम बनेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मेहनत से हमसाया मुल्क को हम बहुत पीछे छोड़ेंगे और पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। मुआविन ख़ुसूसी शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि नौजवानों को जिंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ने के मौके देने के लिए पुरअज़्म है। कामयाब नौजवान हमारा विजन है। हुकूमत ने नौजवानों के लिए अरबों रुपए के फंड्स रखे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने तकरीब में शरीक नौजवान मोहसिन अली की कामयाबियों को सराहा और गले लगाकर उसे शाबाश दी। 5 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले इस नौजवान ने मोहम्मद शहबाज शरीफ के तालीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल किया। आज मोहसिन अली उसी म्यू कॉलेज लाहौर में लेक्चरार है, जिसके करीब वाक़े तंदूर में रोटियां लगाकर रिज़्क़ हलाल कमाया करते। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क़ायद नवाज शरीफ की नौजवानों को मुस्तक़बिल का मेमार बनाने और उन्हें तरक्की से हमकनार करने के विजन पर फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी, तालीम, हुनर से आरास्ता करने, रोजगार, कारोबार के लिए सरमाया फराहम करने, सेहतमंद बनाने के लिए खेल और मस्बत सरगर्मियों में शमूलियत की रोशनी है, जो इस स्याह सोच को मिटाएगी जो नौजवानों को मर जाने, मार देने, जलाने की तरफ उकसाती है। अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इनके हाथ में लैपटॉप के बजाय पेट्रोल बम, बंदूक, गुलेल, पत्थर और डंडे थमाती है। इमारतों, कौमी इदारों पर हमले कराती है, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कराती है, उनके खिलाफ गलीज मुहिम चलाती और नौजवानों को अपने मज़मूम एजेंडे का ईंधन बनाती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने 5 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले हाफिजाबाद के काबिल और मेहनती नौजवान मोहसिन अली को खिराजे तहसीन पेश किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र मोहम्मद मोहसिन अली की कामयाबी की कहानी ही नहीं, बल्कि तालीम के जरिए नौजवानों की जिंदगी और माशरे में तब्दीली लाने के वल्वला अंगेज विजन और सोच की कामयाबी की एक बेहतरीन मिसाल भी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पर शहबाज शरीफ ने मोहसिन अली जैसे सैकड़ों ज़हीन लेकिन गरीब नौजवान बच्चों और बच्चियों को तालीमी वज़ाइफ, बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के मौके देकर उनकी हौसला अफजाई और सरपरस्ती की, जो आज कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम की कामयाबी के दरख्शां सितारे बन चुके हैं और इस विजन की कामयाबी की गवाही दे रहे हैं। नाज़रीन, मारूफ कारगिल में निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले शहीद हवालदार लालिक जान का 24वां यौम शहादत मनाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कौम अपने शोहदा और उनकी अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शोहदा और गाजी हमारे सर का ताज और मुल्क व कौम की सलामती का फौलादी हिसार हैं। उन्होंने कहा कि लालिक जान शहीद ने कारगिल की जंग में अपनी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। हाविल लालिक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब का अहवाल आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश करने के लिए गजर में उनके मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। कमांडेंट जीबी स्काउट्स ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, सलामी पेश की और फूल रखे। कमांडेंट जीबी स्काउट्स ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
الرحمن الرحیم۔ अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने पैगामात में कहा कि पाकिस्तान के ये दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। कौम बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों पर हमेशा उनकी मकरूज रहेगी। हवालदार लालक जान शहीद के 24वें योम शहादत पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का खसूसी एहतमाम किया गया। उलमा कराम का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां हमसे मोहब्बत, अखुवत, इत्तेहाद और यगानगत का तकाजा करती हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बाद अज़ नमाज जुमा रैलियां निकाली गईं और हुर्मत कुरान पाक के लिए आवाज़ बुलंद की गई। तफसील मलिक उमर से। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज किया गया। यौम तकदीस कुरान पाक के तनाजुर में मसाजिद में हुर्मत कुरान पाक के हवाले से जुमे के खुतबात दिए गए। जुड़वा शहरों में बाद अज़ नमाज जुमा मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद हुआ। इस्लामाबाद में मरकजी रैली आपारा चौक से शुरू हुई और प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रावलपिंडी में भी यौम तकदीस कुरान पाक पर एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों का इनेकाद हुआ। एहतजाजी रैलियों में हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरों से मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए जोर दिया कि यूरोप को इस्लामोफोबिया के खात्मे और आज़ादी इजहार राय के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदामात करने की जरूरत है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर एहतजाज किया। वुकला ने कुरान पाक की तलावत की और शाराए दस्तूर पर एहतजाजी वॉक की। बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार ने वजारत खारजा में मजम्मती करारदाद भी जमा करवाई। स्वीडन वाक़े की मजम्मत में पाकिस्तान टेलीविजन के जनरल मैनेजर की क़यादत में भी एहतजाजी रैली का इनेकाद हुआ। रैली में इदारे के मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम और मुलाजमीन ने शिरकत की और बेहुरमती कुरान पाक के हवाले से शाहराए दस्तूर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली के शुरका का कहना था कि ऐसे वाक़यात से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। इनके पायदार हल के लिए यूरोपीय ममालिक को इक़दामात करने की जरूरत है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी यौम तकदीस कुरान पाक इस अज़्म के साथ मनाया गया कि हुर्मत कुरान और दीन की हर सूरत हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट देखिए। कुरान पाक की हुर्मत के लिए आज अहले लाहौर भी यकजान और यकजुबान थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। लाहौर में यौम तकदीस कुरान के हवाले से मस्जिद सौदा के बाहर सियासी जमातों, मुख्तलिफ तंजीमों और ताजिर बरादरी ने मुश्तरका एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने स्वीडन में पेश आने वाले वाक़े की भरपूर मजम्मत की और मस्जिद सौदा से रीगल चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर कारकुनों की बड़ी तादाद के हमरा शरीक हुए। मुजाहिरों में लाहौर की ताजिर बरादरी ने भी भरपूर शिरकत की और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज का सबक यही है कि हमें अपने आप को ताकतवर करना है कुरान पे अमल करते हुए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम अक़लियतों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और वो मुसलमानों के शाना बशाना है। मुसलमान तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो मुक़द्दसात हैं उनका भी एहतराम किया जाए। बादशाही मस्जिद लाहौर में यौम तकदीस कुरान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि इस्लाम में कुरान करीम और नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी यौम तकदीस के हवाले से रैलियाँ निकाली गईं, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची समेत सिंध भर में यौम तकदीस कुरान मनाया गया। नमाज जुमा के बाद शहर कायद के बेशतर मकामात पर स्वीडन में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे हुए। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। शहर कायद में निकाली जाने वाली रैलियों से खिताब करते हुए उलमाए कराम और मुक़र्रिरीन ने कहा कि कुरान करीम रहती दुनिया तक के लिए हिदायत है। स्वीडन की हुकूमत इस मज़मूम वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा दे। वाक़े के खिलाफ एहतजाज के तौर पर शहर भर में कारोबार 2 घंटे के लिए बंद रखा गया। कराची में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक और दूसरी मजहबी और सियासी जमातों, ताजिर, असातिज़ा, तुलबा और वकला तंजीमों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की जानिब से स्वीडन के वाक़े के खिलाफ सूबे के दीगर शहरों में भरपूर एहतजाज किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है और इसमें किसी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं। ताहम मगरबी दुनिया भी मुसलमानों के जज्बात की कदर करे। हैदराबाद में हाई कोर्ट बार, मजहबी तंजीमों और ताजिरों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया।
अंजुमन ताजरान सखर डेवलपमेंट अलायंस की जानिब से सराफा बाजार से हुर्मत कुरान रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। मीरपुर खास में बार एसोसिएशन, मजहबी और समाजी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैलियां, जबकि रावत मेमोरियल चर्च में मसीही रहनुमाओं ने स्वीडन हुकूमत से वाक़े में मुलविस तमाम अफराद और मरकजी मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। शिकारपुर में जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। JUI फे की जानिब से पनुआखिल में जामे मदीनतुल उलूम से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर स्वीडन के घिनौने अमल के खिलाफ नारे दर्ज थे। जिला बनीन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। रोहड़ी में JUI के कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया, जबकि थरपारकर में सिविल सोसाइटी, ताजिर तंजीमों, म्यूनिसिपल कमेटी और हिंदू बरादरी के रहनुमा पवन कुमार मुल्लानी, वनेश भुगत की क़यादत में रैलियां निकाली गईं। खैरपुर, लाड़काना, नौशर फिरोज, घोटकी, कश्मोर, सजावल, दादू, जामशोरो और सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम तक़दीस कुरान पर एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी यौम तक़दीस कुरान मनाया गया। कोयटा से सरफराज शेख की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यौम तक़दीस कुरान इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। जुम्मतुल मुबारक की खुतबात में उलमाए कराम और खुतबा ने किताब हिदायत कुरान पाक की हुर्मत और नामूस पर रोशनी डाली और फजाइल बयान किए। नमाज जुमा के बाद लाखों फर्जंदान तौहीद ने कल्लात खुजदार, डेरा बुगटी ताफ्तान, लोरालाई, दुक्की संजावी, किला सैफुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, चमन, मस्तूंग, गवादर, पशीन और पंजगूर समेत तमाम शहरों में तक़दीस कुरान रैलियों का इनेकाद किया और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया। शुरका का कहना था कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक और मंशूर हयात है। अक़वाम आलम इस घिनौनी साजिश का तदेबाब करे। कुरान की हुर्मत के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। कुरान की हुर्मत सब मुसलमानों को अपनी जान से प्यारा है। कोयटा में मसीही बिरादरी की जानिब से वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा गया कि इस दिलखराश वाक़े से न सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई बल्कि मसीही बिरादरी भी गमज़दा है। यौम तक़दीस कुरान की मुनासबत से बलूचिस्तान हिंदू काउंसिल और हिंदू पंचायत की जानिब से भी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है, कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हिंदू पंचायत के शुरका ने स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुर्म के मुर्तकिब फर्द को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद रहती दुनिया तक हिदायत का सरचश्मा है। आज उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर किताब हिदायत के लिए दिल गिरफ्तार है और ये अहद करती है कि हम अपनी किताब की हुर्मत पर सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम तक़दीस कुरान के सिलसिले में रैलियां निकाली गईं। तफसील बता रहे हैं अमजद अली खान। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने रैलियों में शिरकत की। पेशावर में मरकजी रैली नमाज जुमे के बाद शहर की तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए चौक अदगार पर एख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जिन पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने कहा कि कुरान पाक मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, जिसकी बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की क़ियादत में रैली जिना पार्क पेशावर के करीब नौशो बाबा मस्जिद से हशनगरी चौक तक निकाली गई। निगरान सूबाई काबीना के अरकान फेरोज जमाल शाह, फजल इलाही, हामिद शाह, रहमत सलाम खटक और अदनान जलील ने भी रैली में शिरकत की। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि नामूस कुरान पाक हमारे ईमान का हिस्सा है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला सवाबी, मलकंड, सवाद, दीर, चित्राल, कोहाट, हंगू, करक, लकी मरवत, बनू, डेई खान, टांग, हज़ारा रीजन, खैबर, मोमन, बजौड़ और अगजई, शुमाली व जनूबी वज़ीरिस्तान में भी स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन एहतजाज और रैलियां निकाली गई। मर्दान और चरसदा में क्रिश्चियन कम्युनिटी और ताजिर बिरादरी की जानिब से रैलियां निकाली गई। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। उधर बस्ती पंजाब के अजला में यौम तक़दीस कुरान की मुनासबत से होने वाली एहतजाजी रैलियों का अहवाल बता रहे हैं ताहिर कलासरा।
पंजाब के तूल अर्ज में फर्जंदान तौहीद हुर्मत कुरान की खातिर इकट्ठे हुए और अपना पुरअमन एहतजाज के जरिए दुनिया को ये बावर कराया कि कुरान मजीद का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। शेखोपुरा में जामिया मस्जिद पीर बहार शाह में खिताब करते हुए वफाकी वजीर मियाँ जवेद लतीफ़ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी सतह पर कानून साजी करे ताकि कोई भी किसी मजहब के खिलाफ तौहीन की जसारत न कर सके। फैसलाबाद में उलमा कराम ने जुमा के खुतबा में कुरान मजीद की अजमत बयान की, जबकि शहर भर में मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाजी रैलियां निकाली। गुजरांवाला में वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने रैली की क़ियादत की, जबकि मसीह बिरादरी ने भी स्वीडन में पेश आने वाले नापाक वाक़या पर एहतजाज किया। चिनोट में मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली के दौरान स्वीडन की मसनूआत की बाइकाट का मुतालबा किया। ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियों का इनेकाद किया गया। हाफसाबाद में मुख्तलिफ सरगर्मियों में उलमा ने अजमत कुरान पर रोशनी डाली। पाक पतन में यौम तकद्दस के हवाले से रैलियों का इनेकाद किया गया। मंडी बहाउद्दीन में रैली सदर गेट से शुरू हुई और प्रेस क्लब तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। नारोवाल में भी मजहबी जमातों, ताजरों और सहाफियों ने स्वीडन के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। गुजरात, ओकाड़ा, सियालकोट, चीचावतनी और दीगर अजला में भी यौम तकद्दस के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिनमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़। और अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी यौम तक़दीस कुरान के सिलसिले में रैलियां निकाली गईं। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान शहर में सियासी और दीनी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी की जानिब से स्वीडन के खिलाफ कुरान पाक की बेहरमती पर शदीद एहतजाज और नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुकर्रीरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहरमती के घिनौने फेल से दुनिया भर के मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंची है। जो ममालिक में कुरान पाक की बेहरमती की जाती है, नबी करीम की शान में गुस्ताखी की जाती है, हमें उनको सलाब करना चाहिए। हमें वो इक़दाम करने चाहिए कि दुनिया को ये पता चले कि मुसलमान बेशक अपनी अपनी मर्जी के अपने अपने मुल्कों में अपने काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर हम सब एक हैं। पूरी उम्मा जो है सरापा एहतजाज है और जो उन्होंने ये काम किया है उनकी मुनाफकत, अहले मगरिब की जो मुनाफकत है वो पहले भी थी और अब जो है उससे ज़्यादा नज़र आ रही है। बहावलपुर, बाहुलनगर, डेरा गाजी खान, भियाड़ी, मेलसी, मुजफ्फरगढ़, लैया, लोहदरा, राजनपुर, जामपुर और रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब भर में नमाज जुमा के बाद यौम तकदीस कुरान के सिलसिले में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे। शुरका ने वाक़ये के खिलाफ नारेबाजी की और इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि गुस्ताखों को इबरत का निशान बनाने के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाई जाए। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। उधर आज़ाद कश्मीर में भी यौम तक़दीस कुरान के हवाले से जलसे जुलूस और रैलियां निकाली गईं। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए।
دینی تنظیم مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام سب سے بڑی حرمت قرآن ریلی دارالحکومت مظفر آباد میں نکالی گئی۔ شہر کے اطراف سے آنے والی ریلیاں مرکزی ریلی میں شامل ہوتی رہیں۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز تھام رکھے تھے اور وہ پرجوش انداز میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت قرآن کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ ہم قرآن پاک کے پیچھے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تا قیامت تک۔ تو انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں محمد عربی کا ایک غلام بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے تو انشاءاللہ نہ یہ قرآن کو مخلوق کر سکیں گے نہ اسلام کو۔ ریلی کے شرکاء تقریباً 5 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے مرکزی ایوان صحافت تک پہنچے اور یہاں حرمت قرآن کانفرنس میں شامل ہو گئے، جس سے خطاب کے دوران مقررین نے مطالبہ کیا کہ مسلم ممالک عالمی عدالت انصاف کے ذریعے شاعر اسلام کی توہین پر پابندی لگوائیں اور اقوام متحدہ کے ذریعے حرمت قرآن اور حرمت رسالت پر کیے گئے حملوں کا راستہ روکنے کے لیے کارروائی کروائیں۔ شرکاء نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر کلام الہی سے اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا۔ ویرپور، کوٹلی باغ، راولاکوٹ اور وادی نیلم اور جہلم سمیت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں یوم تقدس قرآن مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملازمتوں کے لیے خصوصی افراد کی معزونیت کا تعین بین الاقوامی معیارات کے مطابق کیا جانا چاہیے اور انہیں مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے نوکریاں تلاش کرنے میں سہولت فراہم کی جائے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ہنرمند خصوصی افراد کی ملازمت کی نشاندہی کر کے نجی شعبے میں بڑے آجروں سے رابطہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری اور صنعتی شعبوں میں خصوصی افراد کو نمائندگی دی جائے تاکہ انہیں ملک کا مفید شہری بنایا جا سکے۔ صدر مملکت نے عام لوگوں کے لیے خصوصی افراد کے سرٹیفکیٹس کا اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ناظرین، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت کی 7ویں برسی پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے برہان وانی اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دی ہے، جبکہ تمام آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے کال کی حمایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے کل برہان وانی کے آبائی علاقے ترال کی طرف مارچ کی بھی کال دی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے برہان وانی کو 2 ساتھیوں کے ہمراہ 8 جولائی 2016 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ نظر بند حریت رہنماؤں بلال احمد صدیقی اور نور محمد فیاض نے جیلوں سے اپنے پیغامات میں کہا کہ برہان وانی نہ صرف کشمیر بلکہ پوری دنیا کے محکوم لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک تحریک رہیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمود احمد ساغر اور دیگر رہنماؤں محمد فاروق رحمانی، شیخ عبد المتین اور امتیاز وانی نے اپنے بیانات میں کہا کہ کشمیری عوام برہان وانی اور دیگر شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ دوسری جانب قابض انتظامیہ نے ضلع کشتواڑہ میں مزید 2 مدارس ضبط کر لیے ہیں۔ اس سے پہلے جموں کے علاقے بھٹنڈی میں ایک مدرسے کو بھی سیل کیا گیا تھا۔ ناظرین، جسٹس مسرت ہلالی نے سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے ان سے حلف لیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء نے شرکت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی سپریم کورٹ میں تعینات ہونے والی دوسری خاتون جج ہیں۔ اس سے قبل جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ میں جج کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ اب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ اور جناب، مینگو فیسٹیول ملتان کی شاندار تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان نے افتتاح کیا۔ فیسٹیول میں آم کے کاشتکاروں، زرعی سائنسدانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ تیار کی ہے خواجہ محمد کلیم نے۔ ملتان کا افتتاح گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کے زرعی سائنسدانوں، طلباء و طالبات، آم کے کاشتکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں کے آم کا دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آم کی برآمدات میں اضافے سے کثیر زر مبادلہ کما کر ملک کی معاشی ترقی میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ مینگو فیسٹیول ملتان کی پہچان بن چکا ہے۔ ہم کسٹمائز ٹریننگ کر رہے ہیں مختلف ملکوں کے حوالے سے۔ آپ جس سٹال پہ جائیں گے آپ کو ٹارگٹ مارکیٹ ملے گی، اسپیشلائزڈ ٹریننگ، یہ جس کو کسٹمائز ٹریننگ کہتے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ ان ملکوں میں ایکسپورٹ کو انہانس کرنا ہے، تو ہم ٹارگٹ کریں کہ یہ گروور ہے۔ مینگو فیسٹیول کے ذریعے آم کی کاشت اور مارکیٹنگ کے فروغ کا سفر جاری رہے گا۔ ہم جتنے لوگوں کو جو بزنس سے اورینٹڈ لوگ ہیں ان کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آئیں، وہ دیکھیں، ہمارے فارمر کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کریں جو ڈائریکٹ بزنس کریں۔ آم کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ مینگو فیسٹیول ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ یہ فیسٹیول ان کے علم میں اضافے کا سبب ہے۔ ہمیں ڈیفرنٹ ورائٹیز کا علم ہوتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں اگر یہ سیکھتے ہیں کہ کوالٹی کیسی ہے، ہمیں ہماری جو ہے ورائٹی کیسی ہونی چاہیے۔ مینگو فیسٹیول ملتان 3 روز تک جاری رہے گا اور اس دوران آم کے کاشتکاروں اور عام شہریوں کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈرامہ پروڈکشن کا ایک معتبر نام ڈائریکٹر پروگرام اکبر ملک پی ٹی وی فیملی کو داغ مفارقت دے گئے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اکبر ملک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے فرحانہ خان کی یہ رپورٹ۔ بے پناہ تخلیقی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مالک پی ٹی وی کے ڈائریکٹر پروگرامز اکبر ملک پی ٹی وی کے تخلیق کاروں کی کہکشاں کے ایسے درخشاں ستارے تھے جو ہمیشہ پی ٹی وی کی سکرین پر جگمگائے۔ اکبر ملک چکوال کی تحصیل تلا گنگ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم آبائی علاقے میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے راولپنڈی چلے آئے اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ 90 کی دہائی میں پی ٹی وی جوائن کیا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتیں انہیں پروگرام کے شعبے میں لے آئیں، جہاں انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی شاہکار تخلیق کیے۔ وہ پی ٹی وی پر معروف سیریل ارطغرل الغازی کے پروجیکٹ ہیڈ بھی رہے۔ اکبر ملک صاحب بہت اچھے دوست، بہت اچھے انسان، بہت اچھے پروڈیوسر، ان کے ساتھ میرا بہت قریب کا تعلق رہا اور بہت ہی پروفیشنل آدمی تھے۔ اللہ پاک ان کو غریق کی رحمت کرے۔ اکبر ملک ایک بہترین ٹیم لیڈر بھی تھے جو آنے والے نئے پروڈیوسرز کے لیے رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتے۔ ان کے ساتھ 3 دہائیوں سے ہماری رفاقت تھی اور ہمیشہ انہوں نے پروفیشنلی ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت انسان، ملنسار اور ایک بہترین دوست جو اپنے کام سے کمیٹڈ، اپنے کام میں مگن۔ اکبر ملک حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آ رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے بعد سی ایم ایچ منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کے پسماندگان میں بیوہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ اکبر ملک کی نماز جنازہ ہفتے کو ان کے آبائی علاقے میں ادا کی جائے گی۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 7 اور 8 جولائی کے دوران موسلا دھار بارش کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، اوکاڑا، کوہاٹ، پشاور، بنو، کرک اور ڈی آئی خان کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران موسلا دھار بارش کے باعث کشمیر، ڈیرہ غازی خان، کوہلو، سبی، بارکھان، یوب، لورالائی، قلعہ سیف اللہ اور موسیٰ خیل کے پہاڑی علاقوں اور ملحقہ مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، شمال مشرقی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹھوار، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور وسطی اور زیریں سندھ میں موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ تربت میں 44، بے نظیر آباد 42، سبی میں 42، ملتان 37، جبکہ سرگودا میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد میں 30، لاہور 34، کراچی میں 39، پشاور 33، جبکہ کوئٹہ میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔